Assalamu alaikum to all of you. Please confirm if I am audible to all of you or not. Just message me that I am audible to all of you. Thanks a lot. Dear esteemed associate professors, I am Abdul Hamid, Director of IT in Directorate of Public Instruction Colleges, Punjab. It is with great pleasure that I welcome you to the Promotion in Training Program, an exceptional initiative by the Higher Education Department in collaboration with the Directorate of Public Instruction Colleges, Punjab. This program is specially designed for our esteemed officers who are on the path of being promoted from BS19 to BS20. This initiative has been championed by our dynamic and forward-thinking Secretary of Higher Education Department. His commitment to leveraging digital technologies and providing necessary relaxations for our officers is a testament of his visionary leadership. These efforts are pivotal in enhancing our departmental and operational efficiency and fostering a culture of innovation and excellence. As the Director of IT for the Higher Education Department, I am particularly excited about the digital advancements that are being integrated into our training program. The PLT program will provide you with the latest digital tools and resources, ensuring that you are well equipped to meet the demands of your new role with confidence and proficiency. This training is an invaluable opportunity to acquire new knowledge, share insight with your peers, and gain a deeper understanding of the evolving educational landscape. Your dedication to higher education and your impending promotion reflects your exceptional capabilities and commitment to excellence. We are confident that this training will be both enriching and empowering, equipping you with the skills and insight needs to excel in your future endeavors. Your contributions are vital to the continued success and advancement of our educational institutes. Respected participants, you all participants from Punjab are divided into 3 groups based on the number of participants from each division. The first group comprises on Faisalabad, Gujranwala and Rawalpindi professors from 3 divisions. The second group contains all the professors from Lahore division, and the rest of the divisions are included in group 3, which is this group in which we are having conversation. आपसे इस ट्रेनिंग में जो सबसे पहला लेक्चर मेरा है वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कंफ्यूजन वो क्वेश्चंस जो आपके अगले पूरे 45 डेज में 6 वीक्स में आने हैं उनको एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी था कि आपके माइंड्स क्लियर किए जाए। आप अब चुप करके अब आपने बैठना है, कुछ नहीं बोलना। मिस फौजिया नसीर, जब तक मैं ना कहूं आपने आंसर नहीं करना। खुद को स्टूडेंट फील करें, क्लास में फील करें और आपके सामने आपका टीचर है जो आपको समझा रहा है। पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। 8 पॉइंट्स, ये 7 है, एक और मिला लेते हैं। 8 पॉइंट्स मैं आपके सामने क्लियर करूंगा, आपसे फीडबैक लूंगा। देन अगर आपका कोई सवाल होगा, यू आर मोर देन वेलकम। सो नंबर 1, मैं कैटेगोरिकली आपके साथ वो चीजें डिस्कस करता हूं जो आपको इस ट्रेनिंग से पहले, इस ट्रेनिंग के दौरान और इस ट्रेनिंग के बाद बदल करेंगे, कैसे आप लोगों ने इनको हैंडल करना। सो सबसे पहली चीज नंबर 1, कौन से लोग इस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल। सो आप लोग इस ट्रेनिंग में एलिजिबल सिर्फ तब होंगे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त 1966 या इसके बाद की है। जी, अगर आप 31 अगस्त 1966 के बाद पैदा हुए तो फिर आप इस ट्रेनिंग में बैठ। अगर इससे पहले आप एग्जेम्प्टेड है, मौज करें, हमने आपकी ट्रेनिंग सर्ट करवानी नहीं है, ना आपसे कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना है। योर PLT is not mandatory if your age is less than or equal to 2 years। अगर आपकी सर्विस 2 साल रह जाती है तो फिर आप इससे वैसे एग्जेम्प्टेड है। सो वो लोग जो 31 अगस्त 1966 तक पैदा हुए उनको तो शुरू में ही गुड बाय कह लेते हैं। आप लोग जा सकते हैं, आराम से बैठे। जब आपकी ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन आएगी हम एक सर्टिफिकेट लगाएंगे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम PLT।
और आप लोग एंजॉय करें। ठीक है जी, ये एक पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो जरा 1 लिखिए इसके अंदर, चैट के अंदर 1 लिखिए। अगर आपको डेट समझ आ गई है तो, कि किन लोगों ने, कौन से लोग एग्जेम्प्टेड हैं। सिर्फ सादिका बतूल को समझ आई है, रबीना भी समझ गई, डॉक्टर शेर मोहम्मद साहब को भी समझ आ गई। आप लोग 180-85 के करीब हैं, रिस्पॉन्स मुझे 8 से 10 मिल रहे हैं। लिखिए लिखिए, मैसेज में रिप्लाई कीजिए 1 के साथ। आप लोग इस वक्त ट्रेनीज हैं, स्टूडेंट हैं, अपनी प्रोफेसरी भी उतार के साइड पे रख दें। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपलशिप भी उतार के रख दें। एंजॉय करें, अपने अंदर का वो बच्चा बाहर आने दें जो क्लास के अंदर हर एक्टिविटी को एंजॉय करता है, सवाए जब मास्टर उसकी पिटाई लगाता है तो। दैट्स गुड, गुड गुड। चलें, नंबर 2, सेकंड पर आ जाते हैं। पहला पैरामीटर था डेट ऑफ बर्थ किसकी है। दूसरा पैरामीटर, आप किस डिवीजन से, इस ग्रुप 3 में आने के लिए। सो ग्रुप 3 में आने के लिए जरूरी है कि आप सरगोदा से हो, या आप मुल्तान से हो, डीजी खान से हो, बाबलपुर से हो, या साहिवाल से। ये 5 डिविजन्स के लोग हमारे इस ग्रुप में शामिल होंगे। चूंकि हमें 200 की स्लॉट है एक ग्रुप के अंदर, सो आप लोग इन 5 डिवीजन से मिलाकर 200 बनते हैं। और अभी भी आप देख ले, पार्टिसिपेंट 200 से ज्यादा नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, आप मत लिखिए, अपने डिवीजन मत लिखें, सिर्फ जेहन में रखें कि अगर आप इन 5 डिवीजन में से हैं, जो हमने आपको लिखवा दिया, अभी मैं दिखा भी देता हूँ, और वैसे भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी ये मेंशन है, तो फिर आप इस ग्रुप में हमारे साथ हैं। सो अगर आप लोग इन 5 डिवीजन में से हैं और ग्रुप 3 के ही पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप यहाँ रहिए, वरना अपना रेलिवेंट ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको डिवीजन की बेस पर ग्रुप समझ आ गए तो राइट 2 इन मैसेज लिखिए लिखिए, शाबाश। मैं साथ साथ आपसे होमवर्क करवा रहा हूँ, बल्कि क्लास वर्क करवा रहा हूँ। दैट्स गुड। शेर साहब, आप जीत जाते हैं हर दफा। इस दफा तो आपने बहनों से भी पहले रिप्लाई कर दिया है हमारे भाई ने। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। तीसरा पैरामीटर, और वो है आपका सीनियरिटी लिस्ट में आपकी रेंज क्या है और सीनियरिटी लिस्ट कौन सी है। ये दो चीजें आपने देखनी है। उसके लिए हमने आपको गूगल फॉर्म शेयर किया था, अभी मैं आपके साथ दोबारा से सीनियरिटी लिस्ट को शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि ये जो फॉर्म जिसके ऊपर आपने गूगल का फॉर्म फिल किया था, जी मैम आप आ जाए। जी, आपके साथ अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो काइंडली यस लिखिएगा। जी, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो इसमें अपनी जरा रेंजेस को पढ़ लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जी। अच्छा, इसमें देखिए, हमने आपको जो सीनियरिटी लिस्ट आपके साथ शेयर की है, वो हमने आगे लिंक में दी हुई थी। वो ये 2 सीनियरिटी लिस्ट हैं। एसोसिएट प्रोफेसर मेल की है 1/8/2022 की, और फीमेल की है 31/5/2022 की। नो अदर लिस्ट विल बी कंसल्टेड एट एनी कॉस्ट। आपके पास 10 लिस्टें इसके बाद हों, दीज वर द फाइनल। इसके बाद टेंटेटिव जरूर इशू हुई हैं, लेकिन टेंटेटिव लिस्ट से ना ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग चूज किए जाते हैं, ना प्रमोशन के लिए प्रमोटीज चूज किए जाते हैं। सो अगर आपका सीनियरिटी नंबर 261 से 600 है, या आपका सीनियरिटी लिस्ट में 168 से 700 है, और आप इन लिस्टों में फॉल करते हैं, तो आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए। वरना आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे, टेस्ट भी दे देंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो क्या लिखना है जी, बताइए डॉक्टर साहब। यस, गुड।
इसका मतलब अब आपको ये समझ आ गई कि आप इन 5 डिविजन में से हैं। आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त 1966 के बाद की है, और आप जो है सीनियरिटी लिस्ट जो 2 इशू की गई हैं उनमें इस सीनियरिटी नंबर में फॉल करते हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस ट्रेनिंग के लिए। गुड, ये 3 चीजें क्लियर हो। सो बाकी लोगों से हम खुदा हाफिज कहते हैं। अगर आप इन 3 कंडीशन में से किसी एक पर भी पूरा नहीं उतरते तो फिर आपको अपने रेलेवेंट ग्रुप में जाना चाहिए या आपको ट्रेनिंग छोड़ देनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4 जब समझ आए ना खुद ही लिख देना आप लोगों ने। अटेंडेंस कैसे लगाई जाएगी? अटेंडेंस आपको खुद नहीं भेजी गई थी, अटेंडेंस हमें ADC से आती है। अटेंडेंस का लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है बाकायदा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी और आपके चैट के अंदर भी। मैं आपके साथ अटेंडेंस का लिंक शेयर कर रहा हूँ, देखिए आपको व्हाट्सएप में इसमें आपको मिल गया यहाँ। जी, अटेंडेंस लिंक आपको मिल गया। ये अटेंडेंस लिंक मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। ग्रुप 3 आपका जो है उसके अंदर मैं अटेंडेंस लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, ये उसमें भी शेयर हो गया। अब जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मैं अब आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर कर ली, ये लिंक है जो आपके साथ शेयर किया गया। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे। मैं आपको ये पेज दिखा देता हूँ। ये फॉर्म है, चूंकि मैं पहले अटेंडेंस लगा चुका हूं, मैं भी आपके साथ पार्टिसिपेंट हूं, आपके सामने ये वाला पेज आएगा। इस पेज पर डेट होगी, आपसे ईमेल पूछी जाएगी, आपकी डिवीजन पूछी जाएगी, नेम, CNIC और बाकी सब चीजें पूछने के बाद आप सबमिट कर देंगे। अब यहाँ ये सवाल है कि ये अटेंडेंस दिन में कितनी दफा होगी? अगर ये दिन में 100 दफा भी अटेंडेंस शेयर होती है, आपने एक दफा ही लगानी। वैसे आप 100 दफा लगाने की कोशिश कर लीजिएगा, लगेगी नहीं। जब आप करेंगे वो कहेगा जी आप पहले अटेंडेंस लगा चुके हैं, क्या कोई गलती हो गई है, आप इस अटेंडेंस को ठीक करना चाह रहे हैं? अगर आप एडिट योर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से अपनी अटेंडेंस को ठीक कर सकेंगे अगर कोई मिस्टेक हो गई। इन तमाम के तमाम पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका CNIC, वो गलत मत लिखिएगा। आपकी अटेंडेंस 80% हमें चाहिए, 45 डेज हैं। आप 30-32 दिन भी आ गए, 35 दिन भी आ गए, 10 छुट्टियां भी करनी तो इशू वही है। तो छुट्टी के लिए किसी से मत पूछें, चुप करके निकल जाए। अगर कोई मैंगो शैंगो आ गया मुल्तान में, आपने बाग बूग में जाना है, किसी को ना बताएं, ना DPI को ना किसी और को। मोबाइल पर लेक्चर ऑन करें, कानों में हेडफी लगाएं और वो जो मैंगो के बागात हैं उनके अंदर घूमना फिरना शुरू कर दें। वैसे जैसे ही मैंगो आते हैं मुल्तान वाले फोन सुनना छोड़ देते हैं। सो आप लोग एंजॉय कीजिए, छुट्टी किसी से ना मांगे, शो ही ना करें आपने कोई छुट्टी की हुई है, और आराम से अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहें। अगर ना भी मार्क करेंगे, 10 दिन भी ना मार्क करेंगे, आपकी अटेंडेंस की बेस पर आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। ठीक है जी। सो अगर आपको समझ आ गई है कि अटेंडेंस नॉट रिसीव्ड, यस, शेयर नहीं हुआ, मैंने अभी भी चैट में शेयर किया है, ऊपर 4 मैसेज ऊपर देखें, सैयद नाजिया गौर साहबा, 4-5 मैसेज ऊपर देखिए। तैयब साहब आप भी देखें 2-4 मैसेज ऊपर, और व्हाट्सएप के ऊपर भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। सबको बाकियों को शेयर हो गया। अब अगर आपको अटेंडेंस लगानी समझ आ गई है, और नहीं नहीं ताहिर भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है जी। आप लोग नंबर 4 पर क्लिक कीजिए, 4 लिख के मुझे भेजिए अगर आपको अटेंडेंस लगाने की समझ आ गई है तो प्लीज। अभी लगा लें, नो इशू। लगा लें, अटेंडेंस लगाते हुए किसी कॉलम की समझ नहीं आती मुझसे। सॉरी, मेरे आज सुबह से 3 लेक्चर मुसलसल थे, कल भी 3 लेक्चर मुसलसल होंगे। इसलिए मैं तो बैठा ही बैठा हूँ, मेरा गला भी बैठ गया। पढ़ाने की आदत नहीं रही जब से मैनेजमेंट में आए हैं। वैसे स्टूडेंट्स पे कम चीखना पड़ता था, प्रिंसिपल्स पे ज्यादा चीखना पड़ता है। आप लोग भी प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं, आपको जो मैंने आज चीजें शेयर करनी है ना, आपने खुशी से घर वालों को जाके बतानी है कि देखें हमारी HED में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो महकमा जिसका कोई पूछता ही नहीं है, उसमें ये चीजें होने जा रही। यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जी ठीक हो गया, अटेंडेंस लगी। नेक्स्ट,
आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा? शफीक खलील साहब CMIS कोड अपने क्लर्क से पूछें। हर कॉलेज का एक कोड होता है जिसे CMIS कोड कहा जाता है। वैसे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि CMIS कोड आपने भी लेना हो तो कहाँ से ले सकते हैं। आपके पास CIS की वेबसाइट होती है, CIS, जिसके ऊपर आप ट्रांसफर एप्लीकेशन और ये वो सब कुछ देखते हैं ना, CIS.punjab.gov.pk। आप इस पर जब आते हैं ना तो आपको यहाँ पे अपने कॉलेज के CMIS सारे मिल जाते हैं। इंफॉर्मेशन का ना होना एक माजूरी पैदा करता है, ये ज़हन में रखिएगा। सो वो चीजें जो आसानी से निकल सकती हैं वो आप खुद से निकालें। सो इसके अंदर जब CIS.punjab.gov.pk पे आते हैं तो इसके कॉलेजेस के अंदर सारे कॉलेजेस और उनके CMIS कोड लिखे होते हैं। आप यहाँ पर लिखिए, जैसे हम कहते हैं जी साहिवाल को भी कॉलेज देख लेते हैं। साहिवाल का कॉलेज जब हम सर्च करेंगे इसके अंदर तो नीचे जो लिस्ट, जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना जी? ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें साहिवाल लिखा है तो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर विमेन साहिवाल आ गया है और इसका कोड भी आ गया 397203। सो आप CMIS कोड यहाँ से ले सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अटेंडेंस लगी जी, अटेंडेंस से आगे चलते हैं। 4 लिख दिया सबने। नंबर 5 पे आते हैं। हम जो आपके साथ लेक्चर रोज ले रहे हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये मटेरियल आपके साथ कहाँ से शेयर किया जाएगा? क्योंकि आप लोग फिर मैसेज में मैसेज शुरू कर देते हैं कि जी हमें लेक्चर पढ़ाया सर ने, हमने तैयारी करनी पेपर की, वैसे लेक्चर शेयर करें। उसके लिए हमने क्या करना है, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें रखा गया है, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपका है, जैसा कि ग्रुप 3 है, हम इस ग्रुप 3 को ओपन करते हैं। मैं आपके साथ अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखते जाइएगा। ये आ गया जी व्हाट्सएप का ग्रुप 3। ये आपका साहिवाल, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर और DG खान, ठीक है जी। ये वाला आपका ग्रुप है। इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। जब इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक drive.google.com का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर आपने क्लिक करना है, इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल की एक ड्राइव पर चले जाएंगे। वो ड्राइव आपको इस तरह से नजर आएगी, गूगल की ड्राइव। जी, आपको गूगल ड्राइव नजर आई जिसमें लेक्चर्स, सिनेरिटी लिस्ट, फर्स्ट एंड सेकंड वीक टाइम टेबल, टॉपिक लिस्ट ऑफ फर्स्ट 2 वीक्स और माइक्रोसॉफ्ट टीम का आपको नजर आ रहा है सेटअप। क्या आपको ये नजर आ गया जी? प्लीज बताइए अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर ग्रुप देख रहे हैं। ओके, डॉक्टर शेर मोहम्मद गोंदल साहब, आप ना हो तो मुझे तो बताइए कोई ना। आप ही सिर्फ हैं जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी सारे किधर है जी? मुझे ध्यान लगा के इधर उधर तो नहीं निकल गए? जवेद साहब, गुड गुड। तो डॉक्टर साहिद साहब ने 1 लिख दिया है और मिलिया साहबा ने 5 भी लिख दिया है। आई लाइक इट कि आपको समझ आ गई, अब मैंने आपसे 5 लिखवाना है। चलें, ये देखिए जी, इसके ऊपर ये आपका टाइम टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो टीचर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, उनका टॉपिक क्या है, टाइमिंग क्या है, ब्रेक कब होनी है, मंडे को क्या है, ट्यूसडे को क्या है, हर चीज आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो पहला पेज, ये दूसरे इसके टॉपिक्स, ये इसके टॉपिक्स की लिस्ट आ गई। अब अगर आप इस गूगल ड्राइव को देखते हैं तो आपको इस लेक्चर्स के अंदर टॉपिक नजर आ रहे हैं 12E, 12F। ये लेक्चर नंबर 12 है जो इतना लंबा हो गया है। A B C D E F, ये सारे लेक्चर इसमें आपके आ रहे हैं। और साथ अगर आप देखते हैं तो टॉपिक 4 भी है। सो आपको इस लिस्ट के अंदर जितने टॉपिक्स नजर आ रहे हैं उतने ही टॉपिक्स आपको उस फोल्डर में भी नजर आएंगे। हर एक टॉपिक, जो लेक्चर हमारे पास आ जाएगा, हमारी टीम के पास आ जाएगा, वो लेक्चर आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। सो इसलिए बी पेशेंट। अगर कोई लेक्चर नहीं लोड शेयर होता आपके साथ तो आप वेट कीजिए कि कब तक उसके जो प्रेजेंटर है वो हमारे साथ लेक्चर को शेयर करते हैं। इसके अंदर सिनेरिटी लिस्ट भी मौजूद है आपके कंसल्टेंसी के लिए, ताकि आप अपना नंबर देख सकें। अब आपको बताइए मैंने आपसे क्या लिखवाना है कि अगर आपको ये समझ आ गई है कि आप अपना मटेरियल डाटा कहां से लेंगे तो मार्क नंबर 5। सादिया हुसैन साहिबा, आप लॉग इन कीजिए, मैंने आपको अभी दिखाया। क्या बाकियों को भी गूगल ड्राइव खाली मिली है? कोई एक बताए जरा। ये देखें, ये जिस बात से मैं मना कर रहा हूँ वही बात स्टार्ट हो गई। शाहिद हुसैन भावलपुर साहब, आप कह रहे हैं शेयर लेक्चर 1। भाई मैं कहां से शेयर करूं जब तक उसका प्रेजेंटर हमारे साथ लेक्चर शेयर नहीं करता? सो वेट कीजिए, हमारी टीम के एंड से कोई डिले नहीं होगा। हमें बार बार मत पूछिए, मैसेजेस मत कीजिए
क्योंकि हमारे एंड से कोई डिले नहीं। जैसे ही हमें लेक्चर आएगा हम आपके साथ गूगल ड्राइव पे शेयर कर देंगे। सो हम भी उतना इंतजार कर रहे होते हैं जितना आप इंतजार कर रहे होते हैं। जी किसी को गूगल ड्राइव खाली तो नहीं मिली किसी और को? प्लीज बताइएगा। लेक्चर, टाइम टेबल, टॉपिक लिस्ट, सिनेरिटी लिस्टें सब मिल गई? मलिया सरफराज को मिल गई, इशफाक साहब को मिल गई, सरफराज को मिल गई, इस्माइल साहब को मिल गई, आशिक साहब को मिल गई, सबको मिल गई। इसका मतलब है हम लोग नंबर 5 लिखवा सकते हैं आपसे और आप लोगों ने लिख भी दिया। 5 चीजें आपके साथ शेयर हो। नंबर नेक्स्ट, आप लोग प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं, आप लोग प्रिंसिपल भी हैं, जिम्मेदारियां तो आपके पास होंगी, वाइस प्रिंसिपल होंगे आप लोग। थैंक यू जी, थैंक यू भाई। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से ही तो लिया है। ये मोहम्मद अरसलान साहब, व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन से मैंने लिंक उठाया है। ये देखिए, ये आपका ग्रुप 3 है, पीएलटी ग्रुप 3। इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पड़ा हुआ है। और सबने जब मैंने लिंक भेजा तो सबने 4 5 भी लिखा था। सो आप भी इसी ग्रुप में से अपना लिंक ले लीजिए। होपफुली अरसलान साहब आप व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन से अपना लिंक ले लेंगे। ठीक है जी। जब आप ले रहे हैं ना अरसलान साहब, तब आपने 5 लिखना है। आगे चलते हैं। हम आपको इन लेक्चर्स की वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। जो लेक्चर्स हो रहे हैं, जैसे मेरे साथ हो रहा है, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, कोई चीज रह तो नहीं गई, हम आपको वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये वीडियोस होगी कहाँ पर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, डीपीआई ऑफिस में जब मैंने चार्ज लिया तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो था कम्युनिकेशन गैप का। नोटिफिकेशन इशू होते हैं, पहुंचते ही नहीं है। हमने कोई बात बतानी होती है, प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है, प्रिंसिपल मोबाइल ही नहीं देख रहा। उसका कोई मसला हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, घर में कोई इशू हो गया, वो 10 दिन की छुट्टी पर है, हज पे गया हुआ है। हमने तो प्रिंसिपल को भेजा, प्रिंसिपल आगे फॉरवर्ड ही ना कर सका। सो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने डीपीआई की वेबसाइट को स्ट्रेंथन किया। कैसे स्ट्रेंथन किया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अभी भी डीपीआई की वेबसाइट पर आइए, डीपीआईसी dpic.punjab.gov.pk। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। इसमें हमने नोटिफिकेशंस ऐड किए कि जो भी नया नोटिफिकेशन हमारी तरफ से इशू होगा वो इस वेबसाइट पर परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। फिर हमने इसके अंदर हाइलाइट्स ऐड किए जिसमें टेंडर और इस तरह की चीजें डाली। फिर हमने इसमें सीनियरिटी लिस्ट ऐड की। अभी इन सीनियरिटी लिस्टों में सिर्फ फीमेल की सीनियरिटी लिस्ट ऐड नहीं है, वो जो फीमेल की सीनियरिटी लिस्ट है वो भी मैं आज ऐड करवा दूंगा, ताकि आपके पास तमाम लिस्ट जो है वो आ जाए। इसके अंदर हमने एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड की, दैट वाज शेयर योर इश्यूज। जी सॉरी, साथ साथ हमें और भी चीजें देखना पड़ती हैं। ओके जी। अच्छा, यहाँ पर शेयर योर इश्यूज का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि सीक्रेटली, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंशियलिटी आप लोग अपना डेटा, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम अपने प्रिंसिपल की शिकायत करनी है, आपने कोई जाती मसला डिस्कस करना है, आपने कोई किसी ऑफिसर की बात करनी है, आप इस पोर्टल के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। इस पोर्टल को सिर्फ और सिर्फ डीपी साहब देखते हैं। अब जब से वो नहीं है, डीपी साहब जब तक दोबारा नहीं आते तब तक इस पोर्टल को हम नहीं देख रहे। ये सारी की सारी चीजें डीपीआई तक जाती हैं, आपके तमाम इश्यूज भी उन तक जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप मेन इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पे आपको यूट्यूब का लिंक भी मिलता है और आपको फेसबुक का लिंक भी मिलता है। आपने इस यूट्यूब को ऊपर क्लिक करना है। इसका ये जो चैनल है ये मैं आपके साथ व्हाट्सएप में भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये डीपीआई का वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है। इसके ऊपर आपको तमाम वीडियो शेयर होगी आपके लेक्चर्स की। आप इस यूट्यूब के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको आम यूट्यूबर ना समझिएगा मुझे, ना ही हमें आपकी इस जगह से कोई ऐड के पैसे चाहिए, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि आने वाली हर नई फंक्शनैलिटी आप तक प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए। ठीक है जी। CMIS में क्या करना है नजर साहिबा, एक बात एक दफा पूछा करें। मैंने आपको बताया था कि CMIS कोड अपने प्रिंसिपल से पूछिए, कि आपके कॉलेज का अपने क्लर्क से पूछ लीजिए कि क्या है। मैंने आपको CIS की वेबसाइट पे जाकर भी बताया कि अपने कॉलेज का CMIS कोड आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी। दूसरा, आपको यहाँ पर फेसबुक का पेज भी मिलेगा, इसी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक का पेज भी मिलेगा। आप इस फेसबुक के पेज को भी लाइक कर लीजिए। मैंने आपके साथ ये व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया, ग्रुप 3 में आपके साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया, और मैंने आपके साथ इस चैट के अंदर भी शेयर कर देता हूं। मैंने चैट के अंदर भी इसको बता दिया। आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, ताकि हमारा आपका राब्ता ना टूटे। हम आपको हर वो चीज जो वीडियो की शक्ल में, ये लेक्चर्स भी वीडियो की शक्ल में आपको बाकायदा प्रॉपर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी। सो ये 2-3 इनिशिएटिव्स थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे हमें, जो DPA की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। सो अब आप नंबर 7 लिखेंगे। अगर आपको अपनी बात DPA ऑफिस तक पहुंचानी आ जाए, आप यूट्यूब और फेसबुक का चैनल देखने के काबिल हो गए हो, तो काइंडली राइट नंबर 7 इन चैट बॉक्स। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। चेकिंग योर रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। आज तीसरे ग्रुप में मेरा तीसरा लेक्चर है और तीनों में सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। एनी इशू? दे दें। 2 मिनट आपने कोई सवाल करना है तो कर लें, फिलहाल मेरी थोड़ी बैटरी डाउन होगी। मैं भी क्योंकि टीचर वीचर नहीं हूँ जनाब, मैं भी आप लोगों के साथ आपका साथी हूँ, इस प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग का पार्ट हूँ। आई एम आल्सो अ ट्रेनिंग, वी आर कुलीग्स। तो जो आपके साथ होनी है इस ट्रेनिंग में, वही मेरे साथ होनी है। मेरे साथ जरा दोहरी इसलिए होनी है कि मुझे साथ काम भी करना है, और ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। वहां पे रायत कोई नहीं होती, कोई सुकून नहीं किया जाता यहाँ पे। टीम थोड़ी है, काम ज्यादा है, इस वजह से मैं भी आपके साथ ट्रेनिंग में भी पार्ट करूंगा और बाकी सब कुछ भी करूंगा। वेरी गुड मोहम्मद शकील अहमद सिद्दीकी साहब, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के कि आप सीखने के लिए बहुत उतावले हुए हैं, और सीखने और सिखाने का अमल तो हमारे दीन की असास है। हमारा तो मजहब इस्लाम ही शुरू पढ़ने से होता है, उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। हम उसी रब के नाम से पढ़ रहे हैं, ये ट्रेनिंग भी उसी रब के नाम से कर रहे हैं। आप कपड़े शपड़े भी 20 स्केल के सिलवाने शुरू करें, और गाड़ी को कपड़ा कपड़ा भी मारिए कि जनाब अब आप 20 की फील लेना शुरू कीजिए। अपनी कुर्सी की पोशिश दोबारा करवाइए, थोड़े मोटा फोम लगवाइए उसके अंदर। वैसे तो टेम्परेचर बहुत है आपके इन एरियाज में, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग अभी प्रमोशन नहीं देगी, फील जरूर देगी इंशाल्लाह। अरसलान साहब, आपने आना है DPA की वेबसाइट पर, और DPA की वेबसाइट के बिल्कुल एंड पर एक बटन बना होगा जिसके ऊपर लिखा होता है शेयर योर इश्यूज। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर से इसे देख लीजिएगा। ये DPA की वेबसाइट है, इसके अंदर एंड पे देखें शेयर योर इश्यूज। आपके कॉलेज से रिलेटेड इश्यूज, आपकी सीनियरिटी लिस्ट से रिलेटेड इश्यूज, जो कुछ भी है, आप लोग बड़ी राजदारी के साथ DPA साहब के साथ इससे शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। आप लोगों ने नमाज पढ़ ली है सबने? नमाज पढ़ ली आप सबने? अभी ब्रेक नहीं मिली आपको नमाज की? चले, मैं आपको 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ नमाज की, ताकि नमाज का टाइम आपका जाया ना हो। हम लोग 5:45 पर आफ्टर एग्जैक्ट 10 मिनट्स इसी क्लास में इकट्ठे होंगे। राबिया सिद्दीकी साहिबा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं आपसे वादा नहीं कर सकता। मैंने आपकी आवाज पहुंचा दी DPI साहब तक, मैं सिस्टम बना सकता हूँ। वो आपके प्रॉब्लम्स को हल करते हैं नहीं करते, ये तो उनकी अपनी अथॉरिटी है। हाँ, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ मिस राबिया, अगर आपका कोई इशू डायरेक्टर IT से रिलेटेड हुआ, हमारी टीम से रिलेटेड हुआ, वो इशू सॉल्व। ठीक है जी। 10 से 15 मिनट की हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर यहीं पे मिलते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी अस्सलाम वालेकुम, welcome back. Kindly confirm, am I audible to all of you, please? ओके, थैंक यू ताहिर अमीन साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे आप लोगों ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी है, क्योंकि नमाज के लिए ब्रेक नहीं देंगे आपको, कोई भी ट्रेनर जो है वो ब्रेक नहीं देंगे। आप चुप करके उठिएगा, जाके नमाज पढ़ के आ जाइएगा। अल्लाह ताला को आपने जवाब देना है, ट्रेनर को थोड़ा ही जवाब देना है। बाकी रहेगी बात लेक्चर्स की, तो जो लेक्चर्स होंगे वो हम आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे इसकी, ताकि आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग्स के अंदर से वो जो है देख सकें वो टाइम जब आप लोग नमाज के लिए गए होंगे कि सर ने क्या पढ़ाया है। स्लाइड्स भी साथ सारी शेयर होंगी, इस वजह से आपको परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नमाज हमने अपने लिए पढ़नी है, हमें बिला वजह हम ट्रेनर को ये मौका दें कि वो हमें मना करे जी आप नमाज ना पढ़ें। और वैसे भी ट्रेनर्स के पास टाइम कोई नहीं, वो खुद तो पढ़ के आ जाते हैं, आपको चांस नहीं देते। ये बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आपके साथ कुछ दुख सुख करते हैं सबसे पहले, ताकि आपको पता चले कि हम जहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं, हम कैसे इस जगह तक पहुंचे। सो हम लोग पीएचईसी के साथ थे जी। एचईडी पीएचईसी को कह के हायर करता था, उनको मिलियंस ऑफ रुपीस दिए जाते थे, और वो हमें तंग करते थे। स्पेशली सपोर्ट नहीं मिलती थी, टीम मेंबर्स पूरे नहीं होते थे, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होती थी, प्रॉपर सपोर्ट की नहीं जाती थी। फिर हम लोगों ने एक दफा उनकी पेमेंट डिले हो गई, तो उन्होंने रिजल्ट ही रोक लिया हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की ट्रेनिंग का। ये बात से जो हमारे सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर साहब थे बड़े अनाइड हुए कि ये क्या बात हुई। उन्होंने डीपीए की ड्यूटी लगाई कि जी आप प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग खुद से स्टार्ट कीजिए। ये सारे ऑन कर दें। जब खुद से हम लोग ट्रेनिंग की तरफ गए, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं थी, हमारे पास सर्वर्स नहीं थे, ट्रेन टीम नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एक्सपर्टीज भी नहीं थी। ये भी नहीं पता था कि पीएचईसी किस तरह के सर्वर्स के ऊपर इन ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करवाता। लेकिन ऑर्डर था, तो फैन देख लो, या इसको थोड़ा पास करता है जी, ठीक है, थोड़ा सा इसको तेज कर सर, मोड देखिए, फैन इसका पड़ा। अच्छा जी। अब जब वो तलाश शुरू हुई, तो पूरे पंजाब से इंटरव्यूज किए गए। हमारे यहाँ आपको पता है कि जिस चीज में कोई पैसा ना हो, वो काम करने की हमी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। सो हमें टीम ही नहीं मिली। लास्टली मैंने यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवाई हुई थी थोड़ी सी, लाहौर डिवीजन के अंदर कुछ कॉलेजेस को ऑनलाइन किया हुआ था। तो अहमद रजा सरवर साहब ने मुझे बुलाया कि जी आप लोग जो है इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करें। उन्होंने मुझे सिर्फ 2 दिन दिए इस ट्रेनिंग के लिए, सेटअप बनाने के लिए। थैंक्स गॉड कि मुझे बड़ी एंथुजियास्टिक टीम मिल गई सॉफ्ट कॉप से, जिसके अंदर उस वक्त हुसैन था, अली था, लड़के बड़े शानदार काम करने वाले। अली अभी भी हमारे साथ है। और सबसे ज्यादा बेहतर काम उनकी जो टीम हेड थी मिस नफीस फातिमा, उन्होंने किया, सेटअप बनाया। विद इन द 2 days वी वर ऑनलाइन। हम लोगों ने 3700 लोगों की ट्रेनिंग की, जिसमें से 3500 के करीब लोग प्रमोट भी हो गए। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, जो कि डीपीआई के क्रेडिट पर आ गई, एचईडी के अंडर। अब हम इस सारे के सारे सिनेरियो को रेप्लिकेट कर रहे हैं। कहने का मकसद ये था कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास टीम कम है, लेकिन हमारा जज्बा बहुत अच्छा है कि हम अपने टीचर्स को जब प्रमोशन के लिए वो सिलेक्ट हों, तो ये चीज उनके ऊपर ये स्टंप ना लगी हो कि इन्होंने प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग नहीं की। सो हमारी एफर्ट्स हो सकता है कि आपको कहीं पर कम नजर आए, हो सकता है कि हम उस तरह प्रॉपर आपको ना सपोर्ट कर सके जिस तरह आप चाह रहे हो। लेकिन ये देखिएगा कि हम लोग बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको बहुत ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और लईसा लिल इंसानी इल्ला मासा, हम तो कोशिश करेंगे, बदला तो अल्लाह की तरफ से होगा, और वही होगा जो हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, हमारी कमियां कुताहियों को नजरअंदाज कीजिएगा, जो बेहतरीन हम आपको सर्विसेज दें उन पे नजर रखिएगा। और इंशाल्लाह आप लोग इस 20 की ट्रेनिंग के बाद बहुत जल्द 4th ईयर रिवाइज हो रहा है, नई सीट्स आ रही हैं, आप लोग प्रमोशन की तरफ भी जाएंगे। सो बिग सल्यूट टू अवर आईटी टीम एंड अवर आईटी टीम हेड मिस्टर इस बार वो आपके साथ ही इस ग्रुप में भी आपके साथ हैं। कोशिश कीजिए कि हमारी टीम को सुबह 9 बजे से लेके ना शाम 7 बजे तक कॉल करें, मैसेज करें, हमसे हेल्प लें, गाइडेंस लें, सब कुछ। लेकिन कल अब हमें कुछ रात 11:30 बजे कॉल्स आ रही थी कि सुबह हमारी पीएलटी है कि नहीं। और उसकी रीजन यही थी कि फेसबुक का पेज नहीं देखा जाता हमारा, यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखी जाती, जिसके ऊपर एक एक चीज एक्सप्लेन करके आपको बता दी जाती है।
इस 1.5 साल के अंदर हमने क्या किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मेरा आज का लेक्चर है आईटी के इनिशिएटिव्स, ऑटोमेशन के इनिशिएटिव्स जो कि एचईडी ने लिए हैं, आपके साथ कुछ शेयर करने हैं और आपको तैयार करना है कि कल को जब आप लोग इन इनिशिएटिव्स को इस्तेमाल करना शुरू करें तो आपके चेहरे पे ना अखबारी ना हो, आप ये ना कहें मेरे पास तो बटनों वाला मोबाइल है, ये क्या कर दिया, अब सारी सर्विस गुजर गई है, 3 साल रिटायरमेंट के रह गए, अब आप चाहते हैं कंप्यूटर इस्तेमाल करें। ऐसी बातें नहीं करनी है आपको। तब्दीली की गुंजाइश हमेशा रहती है। चेंज इज द कांस्टेंट लॉ ऑफ नेचर। जो कौमें स्टेगनेंट हो जाती है, जमूद का शिकार हो जाती है, बाकी कौमें उनके सर पे पांव रख के गुजर जाती है। सो हमें इन आईटी इनिशिएटिव्स की तरफ जाना है और एक ही सिंगल लाइन, वन पॉइंट एजेंडा है हमारा, सिंगल लाइनर एजेंडा। और वो क्या है कि हमें पंजाब को पेपरलेस करना है। पंजाब में हम एक छोटी सी एंटिटी है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, 825 कॉलेजेस, कोई 34,000 के करीब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है हमारा, कोई 7 लाख के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये छोटी सी एक एंटिटी है। मतलब अगर आप सिर्फ स्कूल्स को ही देख लें तो जितने हमारे स्टूडेंट हैं इतने तो उनके स्कूल्स होंगे, हजारों की तादाद में उनके स्कूल है, 24,000 से ज्यादा उनके स्कूल है, 4-4.5 लाख तो उनके टीचर्स हैं। स्टूडेंट की तादाद 1.2 मिलियन है, 12 तकरीबन 12 लाख के करीब उनकी, सॉरी 12 मिलियन के करीब, 1 करोड़ 20 लाख के करीब उनके स्टूडेंट्स हैं। हम बहुत छोटे से छोटी सी एंटिटी। थैंक यू मिस मलिहा, मिस नबीला, मिस राबिया, मिस हामिदा। अब इस 1.5 साल में जब से मैंने इसका चार्ज लिया दिसंबर 2022 में, तब से लेके अब तक हमने क्या किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हम लोगों ने पहली दफा कॉलेजेस की तादाद पूरी की। सेक्टर्स की पास कभी ये कॉलेज 810 हो जाते थे, कभी 807 रह जाते थे, कभी 840 हो जाते थे। हम लोग इसे पोर्टल्स के ऊपर लेकर आए। हम लोगों ने सीआईएस के अंदर मिस्टेक्स को ठीक किया। हम लोग ई ट्रांसफर की एप्स को प्रोफेशनलाइज किया। हम लोगों ने हायर एजुकेशन पोर्टल के अंदर आपके प्रोग्राम्स ऐड करवा के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को प्रॉपर किया। अब हम लोग वर्कलोड कैलकुलेशंस की तरफ जा रहे हैं एसटीआर की बजाय, क्योंकि एसटीआर कभी भी ये नहीं बताती कि एक कॉलेज के अंदर कितने टीचर्स चाहिए जब तक वर्कलोड का ना पता हो। अगर अब 4 स्टूडेंट हो और वो 4 डिफरेंट सेक्शंस में हो तो 4 टीचर चाहिए होंगे, जबकि एसटीआर कह रही होती है कि एक टीचर काफी है, अभी और 100 स्टूडेंट भी आ गया तो इसे एक टीचर संभाल लेगा। हम लोग नई ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए हैं जी। हम लोगों ने ई ट्रांसफर पॉलिसी को रिवाइज करवाया है। हम लोग प्रिंसिपल्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और डीपीई कॉलेजेस का जो ऑफिस है, इसके ऑफिसर्स की पोस्टिंग के लिए नई पॉलिसी लाई। हम लोगों ने आपके प्रिंसिपल्स की इंडक्शन को ऑनलाइन कर दिया है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसपे प्रिंसिपल 400, हमारे 413 प्रिंसिपल्स की सीट्स हैं जो पंजाब में खाली हैं। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप किसी टीचर से कहते हैं कि अप्लाई करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो जो डोजियर की कॉपी होती है, वो जिसे पैनल कहा जाता है, वो पैनल की फोटो कॉपी में 6 से 7 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। 4 कॉलेज में अप्लाई करना है तो 30 हज़ार, और बाद में पता चलता है इंटरव्यू कैंसिल हो गई, फिर आप बैठे रहे अगली दफा फिर पैनल भेजे। हमने से ऑनलाइन कर दिया, आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा, एक डॉक्यूमेंट की चिट आपको जमा नहीं करवाना पड़ेगी, और आप अप्लाई कर सकेंगे मल्टीपल कॉलेजेस के अंदर। आपका मेरिट ऑनलाइन बनेगा, आपको नजर आ रहा होगा, आप देख सकेंगे कि आप किस कॉलेज में किस नंबर पर है, देन इंटरव्यूज के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी। सो ये सीटीआई, इस साल जो सीटीआई की इंडक्शन है वो ऑनलाइन होगी। एक सीटीआई घर बैठा अप्लाई करेगा, कोई आपको डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराएगा, ऑटोमेटिकली उसका मेरिट बन जाएगा, सिर्फ उसने इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू के बाद खुद ब खुद उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी, उसकी ज्वाइनिंग भी थ्रू ऐप ही होगी, मोबाइल ऐप या पोर्टल के थ्रू। सो हमने सीटीआई को भी ऑनलाइन ये कर दिया गया है, सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि कब ये चीजें ओपन होती। हमने रिटायरमेंट प्रोसेस जो ऑनलाइन कर दिया है। मिस अकदस, आपने शायद ओपन नहीं करके देखा HEHR, मैं आपको HEHR अप्लाई करके दिखाता हूँ। आप ये देखें ये प्रोसेस कितना आसान, मेरा असल में काम ही ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपने आगे क्या करना है। तो ये देखिए, अगर हम HEHR पर आते हैं और यहाँ पर अपना लॉगिन करते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको ये प्रोसीजर बताया। उसकी वजह ये है कि आपने कभी हमारा यूट्यूब चैनल देखा ही नहीं है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जो वीडियो है वो यही है कि HEHR के ऊपर रिटायरमेंट नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कैसे करना। HEHR.punjab.gov.pk, ये देखिए इसके अंदर आप जब रिटायरमेंट एंड पेंशन पर आते हैं तो रिटायरमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। आप यहाँ से रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अभी चूंकि मेरी तो अभी नहीं है रिटायरमेंट, आप यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं इनवैलिडेशन रिटायरमेंट, कब से आप लेना चाह रहे हैं, ये सारे पेजेस आप डालें और आप इसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करवा दीजिए। जब आप सबमिट करवाएंगे तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपका प्रिंसिपल होगा, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपका डायरेक्टर होगा, ये ऑटोमेटिकली उनके पास चली जाता है। सो ये चीज जो रिटायरमेंट नोटिफिकेशन है ये तो हम ऑनलाइन कर चुके हैं, आप लोग नहीं देख रहे तो देखें, कसूर हमारा नहीं है, हम आपके डायरेक्टर्स को भी भेज चुके हैं और अपने डीपीए की वेबसाइट के ऊपर भी ये सब कुछ डाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन आया जी मिस सदफ का एक और, मिस सदफ ही है जो सवाल कर रही है। मिस अकदस ने कहा था ऑनलाइन रिटायरमेंट हो गया जी। जब आपका रिटायरमेंट आप ऑनलाइन नोटिफिकेशन हो जाएगा, जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन आप पेंशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। जब आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो एजी ऑफिस इज बाउंड टू इशू योर पेंशन विद इन 1 मंथ पॉजिटिवली। अगर वो नहीं करते तो चीफ सेक्रेटरी और सीएम तक आपकी एप्लीकेशन एलिवेट हो जाएगी कि ये केस एजी ऑफिस के पास आया था, इसने 1 महीने में इस ऑफिसर को पेंशन क्यों नहीं इशू की। ये हो चुका है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम करने जा रहे हैं, ये हो चुका है, आप लोग अप्लाई कीजिए, जो रिटायरमेंट के लोग हैं उन्हें अप्लाई कीजिए। अभी तक हम लोग 374 एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर चुके हैं। सो आप नहीं देख रहे तो फिर ये मैं कहूंगा कि कम्युनिकेशन गैप है। आप इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए डीपीआई के, और वहां पर आके से देखिए। अब आप आगे चलते हैं, एक और आपका ये है, काइंडली ऑल्सो डू लीव प्रोसेस। मिस सदफ, लीव प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। आप अपने अकाउंट में आकर लीव रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू लीव करते हैं, और आप यहाँ से अपनी जो लीव आपका दिल करे, आप एक्स पाकिस्तान लीव ले रहे हैं, उम्रा लीव ले रहे हैं, हज लीव ले रहे हैं, कैजुअल लीव ले रहे हैं, ज़ियारत की लीव है, पैटर्निटी है, मैटरनिटी है, मेडिकल है, अर्न लीव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्टडी लीव और लीव की एक्सटेंशन, ये तमाम मॉड्यूल्स हमारे इस वक्त एक्टिव हैं। मोहतरम ऑफिसर्स, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये आपका कसूर है, आप इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह एक वीक के अंदर आपको मोबाइल ऐप के ऊपर भी आ जाएंगे। जब आपकी मोबाइल ऐप पर आ जाएंगे फिर आपको ये पोर्टल के ऊपर भी लॉगिन नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। सो ये चीज, दो चीजें होगी आपके लीव्स। तीसरी चीज हम आपके लिए जो ऑनलाइन करने जा रहे हैं वो है जी आपके एनओसीज। आप स्टडी के लिए एनओसी मांगते हैं, आप अब्रॉड जाने के लिए मांगते हैं, आप उम्रे और हज के लिए मांगते हैं एनओसी, आप किसी जॉब के लिए एनओसी मांगते हैं, आप एमफिल अलाउंस के लिए अप्लाई करते हैं, आप पीएचडी अलाउंस के लिए अप्लाई करते हैं। मैं पिछली कोई बात नहीं कर रहा, मिस राबिया सिद्दीक कोशिश किया करें, एक अपना एप्टीट्यूड रखें कि जो बंदा जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हो उससे उस सिस्टम के बारे में सवाल किया जाए। जैसे अभी अभी मुझे एक बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया था, मैंने इग्नोर कर दिया जब हम नमाज के लिए ब्रेक पे थे। हमारी सैलरीज कट रही हैं 2002 और 2005, मैं इसका क्या आंसर कर सकता हूँ, ना मेरी डोमेन है ये, ना मैं अथॉरिटी हूँ, ना मैं आपको कुछ रिप्लाई कर सकता हूँ। हम इस वक्त जिन सिस्टम्स पे बात कर रहे हैं, कोशिश करें अपने सवालात को उन सिस्टम पर रखें। वरना पूछने को तो मुझसे ये भी पूछा जा सकता है कि कश्मीर आजाद क्यों नहीं है। सर आप लोग ये इसकी वीडियो भी अपने पास रखिएगा, आप यूट्यूब के चैनल पर आए, वहाँ पे तमाम चीजें ये अपलोडेड है। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं इस फ्राइडे को आपकी ऐप आ जाए ताकि आपको एक सिंगल वीडियो बना के भेजी जाए। HEHR के बारे में ये वीडियो सब भेज दी गई है आपके प्रिंसिपल्स। आप डीपीए की वेबसाइट को कीप ऑन विजिटिंग डीपीए वेबसाइट ताकि आपको इनिशिएटिव्स पता चलते रहे। ठीक है जी। सो आपकी और क्या रह गया आपका जिसके लिए आपको उठना पड़ता है मुल्तान से और मैंगो की पेटी लेके आना पड़ता है एडिशनल सेक्रेटरी के पास। साथ आप कहते हैं सर जी मैं गुजर रहा था बस आपसे मिलने आया, ये बस आम थे। मैंने कहा सर आप नहीं खाएंगे तो हमारा बाग जो है सारा मीठा कैसे होगा। इस तरह की तरह सी बातें करके फिर आप कहते हैं सर वो मेरी एक एप्लीकेशन आई हुई थी, सर वो मुझे डीडीओ पावर्स चाहिए थी। सब चीजें जब ऑनलाइन होंगी तो फिर आपके आमों का कौन सही हकदार होगा ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। एंजॉय करें, आप तो सारे सीरियस होके बैठ गए हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, एटम बम का फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ। एंजॉय कीजिए इस पूरी ट्रेनिंग को। जी बिल्कुल, मुझे इस सारे में पीईआर, देखिए फौजिया नासिर आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन पीईआर की एक्सेप्टेंस नहीं है एसएनटीडी के अंदर।
ये नहीं, हम तो पी और ऑनलाइन करवा देंगे, मैं कल करवा दूंगा, मेरा मॉड्यूल बना हुआ है। आप सारी एफर्ट भी करेंगे, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्होंने ओरिजिनल मांग रही है, तो फिर आपकी डबल एफर्ट हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कैबिनेट से वो रूल अप्लाई करो, चेंज करवा दें प्रमोशन का, लेकिन वो सर्विसेज रूल चेंज होने हमारी औकात से काफी बड़ी बात है। स्टिल सेक्रेटरी साहब को हम ब्रीफिंग दे चुके हैं, इंशाल्लाह वो इसके बारे में बहुत जल्द कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे। जी मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, मुझे पीएस को होना चाहिए। अच्छा जी, ये चीजें होगी। अब इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है इन सीआईएस इन एचईपी में? सबसे बड़ी रुकावट है कि प्रिंसिपल्स ने ये सारा काम जो है वो आगे अपने क्लरिकल स्टाफ पे डाला हुआ। आप में से जो जो प्रिंसिपल्स हैं, जरा यहाँ लिखिएगा जी। मैं भी हूँ, ट्रेंड बनता है ना, आई एम ऑल्सो, मैं भी हूँ, मी टू का ट्रेंड बनता है। जरा बताइएगा यहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे साथ हैं। जी, कोई भी नहीं बता रहा, कोई मानेगा ही नहीं केड़ा प्रिंसिपल इस वक्त। ओ अनिला यास्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया। डिसेंट्रलाइज, शफीक खलील साहब, डिसेंट्रलाइज ही होगी ना जब ऑनलाइन होगी। तो आपकी एप्लीकेशन मुल्तान में जो है वो सैंक्शन अथॉरिटी बैठी हुई है, या वो लाहौर में बैठी हुई है, या वो मरी में बैठी हुई है, आपको इससे क्या लेना देना? आपकी जब एप्लीकेशन ही ऑनलाइन है तो समझे डिसेंट्रलाइज हो गया। हम चाहते हैं कि आपको आना ना पड़े। आप आएंगे ना, 4-5 हज़ार रुपया किराया लगा के आएंगे, हम आपकी फाइल उठा के रखेंगे नीचे वाले दराज, और आपसे कहेंगे सर नहीं मिल रही। ऐसा करें, आप कल आ जाए, होटल में कमरा ले लें, रह लें। जब आप कल आएंगे, फर्ज करें आप मेरी तरह नहीं रिश्वत वगैरह पे बिलीव करते, आप कल आ जाएंगे, वो कहेंगे सर फाइल नहीं मिली, अगले हफ्ते आ जाए। आप कहेंगे यार मैं 20 हज़ार किराया लगा के आया, रात होटल में भी रहा हूँ, 2 हज़ार इसकी मुट्ठी में क्यों ना दे दूं? हम ये चीज ही खत्म कर रहे हैं। और आपको क्या डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए सर? यही तो डिसेंट्रलाइजेशन है कि आप जहां भी बैठे हैं, ट्रांसपेरेंटली आपकी एप्लीकेशन जा रही है। आप देख रहे हैं कि 4 दिन हो गए, प्रिंसिपल ने नहीं अप्रूव की, डिप्टी डायरेक्टर के पास चली गई है। डिप्टी डायरेक्टर ने प्रिंसिपल को खुद ही कॉल किया कि भाई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो, अगर नहीं अप्रूव करनी, रीजंस दो। अब पीईआर जब ऑनलाइन होंगी, इंशाल्लाह होंगी, तो जब आपकी एडवर्स लिखी जाएगी तो सब प्रूफ्स डाले जाएंगे। ऐसे नहीं है कि 2 लाइनें लिख के प्रिंसिपल फौत हो गया और आप सारी जिंदगी प्रमोशन लेने से बैठे। ये नहीं होगा, इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा। इस सारे सिस्टम में सबसे बड़ी रुकावट मैं और आप हैं, जो इस सिस्टम के अगेंस्ट हो जाते हैं, और जिनके छोटे छोटे अपनी चीजें होती हैं अपने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मैं करते हैं, मतलब सिस्टम के अंदर बैठे हुए वो छोटे छोटे सांप, वो तुफैलिए, वो पैरासाइट्स जो इस सिस्टम को चूज कर मोटे होते हैं, वो इस सिस्टम के अगेंस्ट होते हैं, वो इसकी खराबियां निकालते हैं, वो इसको मोनोपलाइज करते हैं। और सच्ची ऑनलाइन का क्या फायदा होता है? अब मेरे पास तो मोबाइल नहीं है जी, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। इन लोगों को अपने ट्रेस करना है, प्यार से समझाना है, ट्रेन करना है, और इस सिस्टम के अंदर लेकर आना है। हम तो कितनी देर और रहेंगे इस सिस्टम में? 3 साल, 4 साल, 5 साल, रिटायर हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इस सिस्टम से यकीनन बहुत बेनिफिट लेंगी, और उसमें मुझे आपकी 100% पार्टिसिपेशन चाहिए, 110% पार्टिसिपेशन चाहिए। सो सी आई एस, एच ई पी कुछ भी हो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अब डिले नहीं ना होगा, जीपी फंड केसेस हैं। डीपीआई अब नहीं है ना हमारे, 1 माह हो गए, लेकिन जब उनकी जगह पर उनकी सीट पर कोई बैठा हो, ये चीजें तो देखिए, मैं डीपीआई को अपॉइंट तो नहीं कर सकता, ना मैं सेक्रेटरी के ऑर्डर कर सकता। मैंने आपको फिर वही कहा, उस डोमेन में रहिए जिस डोमेन में मैं खेल सकता हूँ, मैं आपके लिए बेहतरी ला सकता हूँ। आप मुझे और इनिशिएटिव्स बताइए सर, ये चीज ऑनलाइन कीजिए सर, ये चीज सेक्रेटरी को बताइए। लेकिन मैं सेक्रेटरी को ये बताऊं कि जी डीपीएच 1 माह से नहीं है या 2 माह से नहीं है, वो ऑलरेडी सेक्रेटरी के नोटिस में है। या सेक्रेटरी साउथ नहीं है, इतने सालों से नहीं है, ये इनके नोटिस में है, ये हम तक नहीं। ठीक है जी। सो जनाब, बिस्मिल्लाह, आप लोग इस सिस्टम में वेलकम है। मैं आज आपके यहीं पे, आज पहला दिन था, मैं आपको आधा घंटा और नहीं खपाना चाहता। अगर आपको कोई सवाल है, मैं साथ साथ लेता रहा हूँ। मेरा ख्याल है माइक अनम्यूट करने की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं आपके लाइव क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पूरी ऑप्शंस मौजूद हैं, सबके क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, सबके आंसर मैं कर रहा हूँ। जब मैं माइक अनम्यूट करने की तरफ चला जाता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि किसी एक को जो है, सिर्फ एक को हमें जो है वो प्रेफर करना पड़ता है। वकार अहमद साहब, प्रमोशन के लिए 1 ग्रेड की पीआर्स होनी चाहिए, मैं रूल्स नहीं बदल सकता, मैं पीआर्स को ऑनलाइन करवा सकता। ठीक है ना जी? गिविंग अप वन थिंग मोर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिले फॉर अप्रूवल ऑफ जीपी फंड। मैंने कह दिया जी, जीपी फंड केसेस आपके ऑनलाइन हो जाएंगे, जब ऑनलाइन हो जाएंगे फिर डिले नहीं है। लिस्ट ऑफ वर्क्स, हाउ कम मच सब्जेक्ट्स वी आर टेकिंग एट बॉटम, कैन वी हैव लिस्ट ऑफ वर्क्स?
आपका, मुझे नहीं, आपका सवाल नहीं समझा है। ये सवाल पूछा है मोहम्मद शफीक अली साहब ने। ठीक है जी, अमजद अली साहब प्रिंसिपल हैं, ये भी प्रिंसिपल हैं, मी टू आप भी प्रिंसिपल हैं, एच डाटा खुद करते हैं, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पीएलटीज, ये पता नहीं किस पार्ट के बारे में कहा है। डिसेंट्रलाइजेशन पावर हमारी डिस्कस होगी, मैंने सारों के सवाल लिए। ठीक है जी, क्वेश्चन बैंक जी, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, PC1 में डाला हुआ है असगर साहिबाल साहब, मोहम्मद असगर साहब साहिबाल से आपका एक पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइनर बन रहा है, जो टीचर्स को एक्सेस होगी, और उसका एक पोर्शन स्टूडेंट को भी होगा, कि स्टूडेंट भी HED DPI आपके कॉलेज की वेबसाइट पर आए और लॉगिन करे, लॉगिन करके अपना क्वेश्चन पेपर वहां से ड्राइव कर ले। हर एक कॉलेज के जो लोग होंगे वो हम लोग अभी PHEC से भी डेटा ले रहे हैं, हम लोग अभी क्वेश्चन बैंक का डेटा बोर्ड से भी ले रहे हैं, और आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पेपर बैंक बना रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों को और टीचर्स को क्वेश्चन पेपर बनाने की फैसिलिटी मौजूद होगी। वो जो एक इंसाफ एकेडमी के नाम से एक हमारी वेबसाइट है जिसपे ये सारा कुछ चल रहा है, वो अब हम लेके HED पर डालने लगे अपने नाम से, ताकि हमारे स्टूडेंट और टीचर को उसकी एक्सेस मिले। मैंने वकार साहब, मैं STR और वर्कलोड दोनों चीजों को बता चुका। ठीक है जी। जी ठीक है, देखिए मैं सबको गलत नहीं कह रहा, मैं आपको एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल्स, स्पेशली कॉमर्स कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे साथ हैं नहीं यहाँ पर इस ट्रेनिंग में, उनकी तरफ से तो आप ना ही समझे ना, कि जब भी डाटा लेना है उनको नहीं पता क्लर्क क्या भेज रहा है। इवन बार दफा ऐसा होता है कि एक कॉलेज से 3 रिस्पॉन्सेज आते हैं, तीनों डिफरेंट होते हैं, एक 18 टीचर लिख रहा है, 11 लिख रहा है, 13 लिख रहा है, सर पैर ही नहीं मिलता। सो इसलिए प्रिंसिपल्स, आप जब प्रिंसिपल्स बने, या आप प्रिंसिपल्स के करीब हो, या आप वाइस प्रिंसिपल हो, डेटा पे नजर रखें। ये डेटा जितना अच्छा, जितना रिफाइंड आप हमें भेजेंगे, हम उतनी ही बेहतर डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे। सारा अवेलेबल है, मिस अकीला, मुश्ताक। अब आप ये बात ना कहें फिर आप अपनी, मैं कहूंगा विद सॉरी टू से, अपनी कम इल्मी को हमारे इनिशिएटिव्स पर मत लेकर आइए। मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ जो आप कह रही हैं, ये डाटा नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ये देखिए, आपके पास एक वेबसाइट है cas.punjab.gov.pk। आप बताइए किसकी वैकेंसी पोजीशन आप देखना चाहते हैं। आप सैंक्शन पोजीशन पर आते हैं, आप देखना चाहते हैं जी कंप्यूटर साइंस के, या कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर की सीट्स कितनी खाली हैं, कहाँ पर, सिर्फ फीमेल की आप देखना चाहते हैं, आप किस डिवीजन में देखना चाहती हैं, जी बहावलपुर में देखना चाहती हैं, आप अप्लाई कीजिए। एक पूरी डिटेल आती है आपके पास कि 17 सीटें वेकेंट है, 31 एक्यूपाइड है, टोटल 48 है। अब ये 17 सीटें कहाँ खाली हैं, आप क्लिक कीजिए, ये सारी एक एक कॉलेज आपका, ये पब्लिक है, मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ, ये पब्लिकली अवेलेबल डाटा है। अब यहाँ मसला क्या आएगा, अगर प्रिंसिपल ने अपनी वैकेंसी पोजीशन को प्रॉपरली नहीं डाला हुआ तो प्रिंसिपल टाल नहीं सकते, बट दे कैन रिपोर्ट टू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, अपनी मिस्टेक को करेक्ट नहीं करवाया, तो डाटा आपके पास गलत शो होगा। सो आप ये ना कहिए, हमारे इनिशिएटिव्स को ऐसे एक सिंगल लाइनर में मत कर दिया करें कि वेकेंट सीट डाटा इज नॉट अवेलेबल। सब कुछ अवेलेबल है जी, बस ढूंढने वाली नजर चाहिए। एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओन कीजिए, यही सोल्यूशन। हम जितना भी बेहतर करें, आपकी नजरें करम अगर होगी तो बेहतरी आएगी, वरना नहीं आएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट ट्रेनिंग। कल मैं आपके साथ कुछ IT के स्पेसिफिक चीजों के ऊपर बात करूंगा, मेरा लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोग ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखें, बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं है, आई थिंक वी नीड टू सर्च ऑल वेबसाइट्स रिगार्डिंग, नो नो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेबसाइट है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वो है cas.punjab.gov.pk। आपके इसी वेबसाइट की मोबाइल ऐप मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ जिसकी मोबाइल ऐप है इसी वेबसाइट। आप play.google.com पर आते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इतना खलारा अगर आपने डाला हुआ, तो फिर हम आप लोगों से एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि आप कर क्या सकते हैं। आप ये देखिए, ये जो प्ले स्टोर है, इसके ऊपर मोबाइल ऐप मौजूद है जिसका नाम है HED पंजाब। मेरी स्क्रीन यकीनन आपके साथ शेयर हो रही होगी। ये जो HED पंजाब ऐप है, इसके ऊपर ये ऐप जो है, ये उसी CIS के साथ इंटीग्रेटेड है, उसी CIS के साथ आपके पास सारा वैकेंसी पोजीशन का डेटा इस HED ऐप के ऊपर आता है। लेकिन आपको नजर तब आएगा जब ट्रांसफर राउंड ओपन होगा, उससे पहले आपको मोबाइल ऐप पर नजर नहीं आएगा। लेकिन आप वेबसाइट पर जाकर CIS पर अपना सारा डेटा देख सकते हैं। तो एक तो ये बात होगी कि CIS.Punjab, कॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम .punjab.gov.pk, ये चीज। अब ये हो गया HED की तरफ से जो डेटा आ रहा है, जो DPI ने अपनी बात करनी है वो तो DPI की वेबसाइट पे करनी, तो हमारी वेबसाइट भी आपको देखनी चाहिए।
तीसरी आपकी मोबाइल ऐप है। अब आपकी तमाम चीजें मोबाइल ऐप पर इंटीग्रेट हो रही हैं। इस मोबाइल ऐप के अंदर आप अपने मुख्तलिफ एनओसीज के लिए अप्लाई करेंगे, आप अपने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के लिए अप्लाई करेंगे, लीव्स के लिए अप्लाई करेंगे, रिटायरमेंट के लिए करेंगे, प्रिंसिपल्स के लिए अप्लाई करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर और डीपीआई कॉलेजेस के अंदर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। सब कुछ आपका एक सिंगल मोबाइल ऐप पर। ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉलेजेस 825 है जी, और वो भी आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। 825 है। 4 हमारे ऑटोनमस कॉलेजेस हैं, 121 हमारे कॉलेजेस जो हैं वो कॉमर्स के कॉलेजेस हैं, 700 हमारे मेल और फीमेल के कॉलेज। इनकी मजीद बाइफिकेशन भी आपको फिल्टर्स की शक्ल में मौजूद है। जैसे मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, ऐसे आपकी कॉम्पिटिटिव के ऊपर होने चाहिए। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रोज टाइम पे लेक्चर अटेंड करें, अटेंडेंस लगाएं। लेक्चर के नोट्स जब आप रात को अगले दिन फारिग हो यूट्यूब के ऊपर सुन लें या डाउनलोड करें, और अपने आप को 20 स्केल की प्रमोशन के लिए एलिजिबल करें। आपका कोई सवाल रह नहीं गया जी? सब कुछ हमें पता है। मैं कंप्यूटर साथ की कमी भी नहीं पूरी कर सकता। डीपीआई कॉलेजेस आप लिखेंगे सर, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। अभी सारा अहमद डीपीआई सी, डीपीआई कॉलेजेस, dpic.punjab.gov. ये मैंने किया हुआ है। यकीनन आपको आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ तो बेहतर लगा होगा। दुआ करें हमारे लिए, दुआ करें अपने ऑफिसर्स के लिए जो हर लम्हे आपकी बेहतरी के लिए सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। मेरी तरफ से बस यही है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।